नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili, and as I say all the time, that's a whole lot of people. Yes, a lot of people. So which means China. there's a lot of interest in India. कहने का मतलब ये हुआ प्रदीप जी, hell of a lot of interest in India everywhere. The very fact that we are being watched in all these places, which is fantastic. और आमिर खान जी के बाद आपका बहुत चर्चा हो रहा है चाइना में सर। हाय हाय हाय, कमाल है सर, कमाल है सर, कमाल है। आमिर खान का पिक्चर देखते हैं और आरकेबी शो देखते हैं। हाय हाय हाय। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग अभी 8वीं माला पे हैं, स्टूडियो हमारा 8वीं माला पे है, ऑफिस हमारा 10वीं माला पे है। प्रदीप जी पूरी कोशिश में है कि मैं 10वीं माला से उड़ी मार के कूद मार लूँ। मतलब ऐसा मत करो सर, कहाँ आमिर खान, मतलब कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, बट all the same, it is absolutely true that a hell of a lot of people in China and in Japan are watching us, and so are people in East Africa. And most of our the people that watch you, the viewers, they are waiting for you to start your show from Burj Khalifa, 149th floor, Dubai. That will happen. Yes. That we can assure you will happen. Maybe New Year from the Burj Khalifa, from Dubai. And it will happen. I am absolutely certain it will happen. So Pradeep ji, which is, and before we start the show, once again, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो कर लो, please. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी चीज क्या है प्रदीप जी, I am very very happy to know a couple of very lovely things, and I've just come to know from our sources in Delhi that the Prime Minister has actually given the go-ahead for a feasibility study for one of the oldest projects. It started way back in the 60s and it never took off. It is part of the riverine transport project. It is the Ganga Kaveri link, from the Ganga to the Kaveri. The entire eastern seaboard or the entire eastern belt of India to be connected via various tributaries, distributaries and various other channels of the Ganga, and it will go right down to the Kaveri. And somehow or the other we'll have to get Bangladesh on board. But considering the fact that the weather patterns have changed, the monsoons have become more intense, and this water needs to be conserved or used, I don't think there should be any objection from that side. So I think it will be fantastic. All the projects of which concerns the nation, I think it's on, and it's going on the war footing. लेकिन सर ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि मैं जब स्कूल में था, the slogan, the विकास भी और विरासत भी. पांडे जी will be very happy when he hears that. क्योंकि सर जब मैं स्कूल में था ये मैंने सुना था, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गार्लैंड कैनाल की बात करी वगैरह वगैरह, लेकिन वो नहीं होगा। गंगा कावेरी लिंक इज वेरी वेरी डूएबल। और यहाँ पर योगी जी ने कहा है कि भाई उनको जो रिवरिन ट्रांसपोर्ट की बात थी, रिवर ट्रांसपोर्ट की जो बात थी, वो प्रोजेक्ट को जरा दोबारा रिवाइव कीजिए प्लीज। ये नितिन गडकरी साहब जब ओवरऑल ट्रांसपोर्ट देख रहे थे, नॉट जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, तब उन्होंने जबरदस्त किया था कि बनारस से लेकर के सीधा कलकत्ता तक वाया रिवर, there were so many barges and so on and so forth that had just been commissioned. God knows what happened to that project. You know, it would have saved us so much of money. I wish they would increase they would give back that same portfolio to Nitin Gadkari again. So it will be fantastic. And especially UP के अंदर अगर आपको याद हो, उत्तर प्रदेश में that's mostly Mughal territory. मुगल एम्पायर में जो मेन ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी प्रदीप जी, that was on rivers. नदी के रास्ते ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी. वी शुड रिवाइव दैट. अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी रोड्स के ऊपर जो प्रेशर है, रेल रोड्स के ऊपर जो प्रेशर है, वो कम हो, तो आपको रिवर ट्रांसपोर्ट आपको एकदम इंक्रीज करनी पड़ेगी. एंड आई होप द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीबडी एल्स इज लिसनिंग टू दैट. बट यू नो, दिस इज स्टफ व्हिच आई एम नॉट श्योर, बिकॉज दिस इज स्टफ लाइक द फार्मर सुसाइड्स. नोबडी वांट्स टू वॉच, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट. इट्स लाइक एजुकेशन. जब भी हम लोगों ने शो एजुकेशन पे किया प्रदीप जी,
the number of viewers haven't been that many. बिल्कुल बिल्कुल. आप देखिए उत्तर प्रदेश में, for example, पूजा मिश्रा जी is there with us, I think. Yes. I'm sure she'll be able to throw some more light on it. एक जमाना था उत्तर प्रदेश में सर, जो यूनिवर्सिटीज थी उत्तर प्रदेश की, they used to be the standard. They used to be the standard for everything. पूजा मिश्रा जी नमस्कार. Namaskar, ma'am. Namaskar. We are seeing you after a long time. I think you must have been very, very busy, Dr. Pooja Mishra. I love saying that, you know. I love saying Dr. Pooja Mishra. It makes me feel so nice, you know. Very good. You know, we have a huge interest in your progress, Pooja Mishra ji, Dr. Pooja Mishra. In the entire team of Nation now, we would like you to succeed. मैं अभी वही बात कर रहा था प्रदीप जी से कि हिंदुस्तान को क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा. जो मर्जी पार्टी हो, चलिए आपकी पार्टी शायद जीत जाएगी अगले साल या 2027 में जब भी इलेक्शन होंगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो एक ज़माने में यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी 60s में, 50s में, 60s में, अरे क्या स्टैंडर्ड. BHU भैया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यूज्ड टू बी द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एवरीथिंग एल्स वाज मेजर्ड फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स, जैसे लिटरेचर हो गया, उर्दू लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, इवन हिंदी लिटरेचर, उसके लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके लिए यू हैड दिस BHU. और BHU में तो साइंस की जहां तक बात है, पाकिस्तान का आज तक कोई भी बंदा जो है वो उसमें उसको नोबेल प्राइज नहीं मिला. साइंस के लिए नोबेल प्राइज मिला सिर्फ डॉक्टर अब्दुल सलाम को. एंड गेस हु वाज हिज टीचर. वो जब यहां पर आए अपना नोबेल प्राइज का गोल्ड मेडल लेकर के, जब यहां पर आए, बाय द वे ही वाज एन अहमदिया, सो एज अ रिजल्ट व्हिच पाकिस्तान डज नॉट इवन एक्नॉलेज हिम. उन्होंने आकर के अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साहब के सामने रख दिया कि सर आपकी वजह से मुझे ये मिला है. तो दैट यूज्ड टू बी यूपी. अब वो स्टैंडर्ड वापस कब आएगा? शैलेश पांडे जी नमस्कार. जय सिया राम. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सर. नमस्कार प्रदीप जी. नमस्कार डॉक्टर जी. जबरदस्त. डॉक्टर मिश्रा, वो स्टैंडर्ड कब आएगा और कब हमारे लोगों को इंटरेस्ट आएगा एजुकेशन के बारे में बात करने के लिए, विद्या के बारे में बात करने के लिए? मतलब क्या हो गया हम लोगों को? वी आर नॉट कंसर्न. मतलब हम लोग हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं, हम लोग मतलब कास्ट की बात कर रहे हैं. सर चलिए बाकी सब करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है. लेकिन एज फार एज द बेसिक थिंग इज कंसर्न, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट एंड सो ऑन, उसके बारे में कब इंटरेस्ट आएगा लोगों को? डॉक्टर मिश्रा बताएं प्लीज. आपको नमस्कार राजीव जी, सभी को मेरा नमस्कार, प्रदीप जी को मेरा नमस्कार. आपने प्रश्न किया कि ये जो जैसे जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, जहाँ से मैंने पूरी पढ़ाई की हुई अपनी ग्रेजुएशन से लेकर के PhD तक की, उसको ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था. ईस्ट का ऑक्सफोर्ड उसको इसलिए सिर्फ नहीं कहते थे कि वो ऑक्सफोर्ड के तरीके से आपको रिजल्ट देता था, इसलिए कहते थे कि DPhil होती है, जो हमारी PhD की डिग्री है ना, उसको DPhil कहा जाता है. ऑक्सफोर्ड इकलौती जो DPhil देती है आपको, उसके बाद में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद देती है. बाकी सब जगहों पे वो PhD होती है, हमारे यहाँ पे DPhil होती है, इसलिए उसको ऑक्सफोर्ड कहा जाता था. वो क्वालिटी भी होती थी. और अभी क्वालिटी डिटेरियोरेट होने के लिए अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे कारण हैं. आपने कहा ना लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है. हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है. यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, क्योंकि मैं इसको देख रही हूँ, मैंने इसको डिटेरियोरेट होते हुए देखा हुआ है. अगर इसकी बात करें तो पहले इसको कहा जाता था ये हब हुआ करता था UPSC के, खूब एस्पिरेंट निकलते थे. फिर UPSC के करिकुलम में बदलाव आया. करिकुलम में बदलाव आकर के हिंदी मीडियम को साइडलाइन किया गया और अंग्रेजी मीडियम को लेकर के आए. उससे क्या हुआ कि जो हिंदी मीडियम के, भाई उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में भले यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद आपको डिग्रियां इंग्लिश में दे रही हो, इंग्लिश माध्यम से आपको BSc करा रही हो, BA करा रही हो, कॉमर्स करा रही हो, पर वो जो बच्चे पढ़ करके आने वाले होते थे वो यूपी बोर्ड के होते थे, हिंदी माध्यम से होते थे. तो जब वो चेंज आया उनको परेशानी आई लैंग्वेज की, लैंग्वेज की बैरियर की वजह से वो डिटेरियोरेट होते चलता चला गया. और उसके बाद में आया करप्शन किस में आया? रिक्रूटमेंट में आया. और अभी भी मैं आपको दावे के साथ बोल सकती हूँ, आप आकर के एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा. रिसेंट में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में रिक्रूट हुए हैं बहुत सारे प्रोफेसर. आप बात करेंगे तो आपको चिंता हो जाएगा कि इनका रिक्रूटमेंट कैसे हो गया हुआ है. आपको रियलाइजेशन होगा कि दे डोंट डिजर्व दैट पोजीशन ऑन व्हिच दे आर सिटिंग राइट नाउ. तो ये करप्शन की भेंट सारे एजुकेशन सिस्टम चल गए. और हम प्रश्न भी अगर कर रहे होता, विपक्ष कर रहा होता कि UGC का फंड क्यों काट दिया गया, हेल्थ सेक्टर का फंड क्यों काट दिया गया. जनता को इतना परेशान कर दिया गया कि वो 2 समय की रोटी का इंतजाम कर रही है. उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जो एजुकेशन लेते चले जा रहे हैं, एजुकेशन आप लेके बैठ जा रहे हैं,
उसके बाद में आपको वैकेंसी नहीं मिल रही है। तो जब तक जो क्वालिटी है, क्वालिटी को रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, तब तक वो डिटेरियोरेशन ही दिखता रहेगा। और ये बात सही है कि अगर आप एजुकेशन पे बात करेंगे तो वो लोगों को बोरिंग लगता है, वो स्कोप नहीं देता है, वो एंटरटेन नहीं करता है। लोग आजकल न्यूज चैनल भी इसलिए देखने लगे कि उनको एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, इसलिए नहीं देख रहे होते कि कोई इशू चल रहा हो, जो बेसिक ग्राउंड इशू हो, उस पर डिस्कशन चल रहा हो। पूजा मिश्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी ने क्लियर कट कहा कि दीपोत्सव भगवान राम के स्वागत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश करने वाले इस बार जो दीप लगेंगे अयोध्या में, और उसके साथ साथ उन्होंने वार्निंग भी दिया है जो भी दीपोत्सव को तकलीफ देने के लिए कुछ भी काम करेगा उसके लिए यमराज और जेल दोनों तैयार है, मैं तैयार करके रखा हूं। तो व्हाट डू यू थिंक, एक तो कि जिस प्रकार से दीपोत्सव के लिए पूरे अयोध्या, एंड हाउ डू यू सी योगी आदित्यनाथ वार्निंग जिस प्रकार से है? योगी आदित्यनाथ जी इंद्र भगवान तो है नहीं, पर फिर भी वो कहते हैं कि यमराज को उन्होंने तैयार कर रखा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जज भी नहीं है, ज्यूरिडिक्शन का पार्ट भी नहीं है, फिर भी वो कहते हैं कि उन्होंने तैयार की हुई है। यही तो गड़बड़ है। वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि जब उन्होंने भाषण दिया दीपावली को लेकर के, मनाइए दीप उत्सव, बहुत बड़े तरीके से दीप उत्सव मनाइए, तब उनको ये कहना चाहिए था कि मैं मुख्यमंत्री हूँ उत्तर प्रदेश का, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि आप लोग त्योहार शांतिपूर्वक मनाएंगे, कोई भी किसी भी तरीके की जो है यहाँ पे गलत गतिविधि नहीं होने दिया जाएगा। ये कौन सी बात होती है कि गलत गतिविधि हो जाएगी, उसके बाद में हम जो है यमराज को आदेश देंगे, तो यमराज अगले चौराहे पे आकर के खड़े हो जाएंगे, उसके बाद में हम जजमेंट देंगे और आपको जेल के अंदर भेज दिया जाएगा या फिर आपका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। यही गलत होता चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे तो आंकड़ा, इससे पहले हम लोग 2022 के आंकड़ों पे बात किया करते थे, अभी 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा रिसेंट पब्लिश हुआ है, जो साफ साफ बताता है कि उत्तर प्रदेश में महिला के अगेंस्ट में क्राइम में वृद्धि हुई है, नंबर 1 पर है, और दलित के अगेंस्ट में भी क्राइम में वृद्धि देखी गई हुई है उत्तर प्रदेश में। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। और एनकाउंटर्स के आंकड़े जो बता रहे हैं, बता रहे 256 एनकाउंटर्स इन द पास्ट 8 years उत्तर प्रदेश में हुए हैं, जिनमें से 96 एनकाउंटर्स ऐसे हैं जिसके अगेंस्ट में सरकार को मुआवजे देने पड़े हैं या फिर वो मुआवजे के फेलिस में आगे बढ़ रही है। तो आप क्राइम ना कम करके, क्राइम बढ़ता जाए, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, आप कह रहे हैं कि चलो 200 क्राइम हो गया, अब हम 180 का एनकाउंटर करेंगे और अपनी पीठ थपथपाएंगे। आप ये नहीं सोच रहे कि 200 क्राइम नहीं होना चाहिए, 20 क्राइम होना चाहिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश जो है गिरता हुआ चला जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस पे नहीं है कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था बनी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। रादर उनका ध्यान इस पे है कि किस तरीके से वो एज अ पोस्टर हीरो बन करके निकले, कि वो एनकाउंटर कराते हैं, वो किसी को जेल के पीछे भेजते हैं, कहीं पे यमराज खड़े कर देते हैं। हालांकि वो भी सच्चाई नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको लाइव लोकेशन देने के बाद भी बच्चों को आप नहीं बचा पाते, पुलिस नहीं पहुंच पाती है। अभी तो उत्तर प्रदेश में एक और चल रहा है कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न करना है तो आप किसी को उठा करके लेकर के चले आइए थाने पर, उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत मत करिए, उसको कंटिन्यूअसली 3 दिन 4 दिन 5 दिन आप जैसे डिटेन करना है डिटेन करते रहिए। अगर जाकर पहुंच गया, कोर्ट पहुंच जाता है व्यक्ति, तो पता चल जाता है कि उसके साथ में जाति की गई है और आदेश करता है कोर्ट की भाई पुलिस कमिश्नर जो है उनको पहले जेल भेजा जाए। और अगर ये बातें बाहर नहीं निकल करके आती तो ये चल रहा होता है। पुलिस अपनी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसन्न करने में लग गई है, रादर देन कि उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो फॉलो करें। जी, तो बट इज इट ट्रू मैम दैट द क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैव गॉन अप? बिकॉज़ एनसीआरबी डेटा सेज सो। जो अभी लेटेस्ट एनसीआरबी डेटा पब्लिश हुआ है, इज इट ट्रू? इज इट रियली ट्रू? बिकॉज़ आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन यूपी, लखनऊ में, नोएडा में, जौनपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में, हर जगह पे वो कहते हैं द रिजल्ट्स आर समवॉट मिक्स्ड, डिपेंड्स ऑन विच पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन यू कम फ्रॉम। लोग ये कहते हैं कि भैया ज्यादातर जो आया है कि आजकल शांति है उत्तर प्रदेश में, ये कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं राजीव जी। मेरे यहाँ से जो है मेरी जूनियर है और अभी रेगुलर मेरे को विजिट कर रही है, और 4 बजता तो मैं सोचती हूँ उसका घर पड़ता है, उसको वो स्कूटी से आती है, हाफ एन आवर का रास्ता है, और मेरा रहता है कि वो पहुंच जाए। अगर आधे घंटे में अगर वो नहीं पहुंच करके मुझे मैसेज नहीं करती, मैं कितना बिजी हूँ उसके, वो बिल्कुल उसको इंस्ट्रक्शन है कि आपको हमें टेक्स्ट करना ही है, क्योंकि वो अगर नहीं करेगी फिर टेंशन हो जाएगी, और मुझे ही नहीं होगी
उसके घर वालों को भी टेंशन होती है, उसको खुद को भी टेंशन होती है, वो एवरीडे अप डाउन करती है और एवरीडे टीजिंग होती है, एवरीडे। उस मॉर्निंग में आती है 10:30 बजे, वो इवनिंग में 4 बजे 4:30 बजे निकलती है और एवरीडे उसकी टीजिंग होती है, वो बताती भी है। पर आप रिवोल्ट भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप अकेले ड्राइव करके जा रहे हो और वहां पे अब रोज का यही हालात हो रखा हुआ है, और इसीलिए एनसीआरबी के आंकड़े भी यही बता रहे हैं, आपके बोलने से उत्तर प्रदेश की सच्चाई नहीं छुप जाने वाली है। आप कहते हैं रात को बड़े फ्री होकर के जा सकते हैं, चला जाए कोई, पूछे किसी को भेज दे और उसको चिंता ना रहे। तो यहाँ पे तो लाइव लोकेशन देने के बावजूद भी आपने उत्तर प्रदेश का जजमेंट नहीं सुना था क्या? एक जज ने जजमेंट दिया था कि नाड़ा खोलने की कोशिश करना, कपड़े फाड़ना और लड़की को घसीटना, ये गंभीर टीजिंग के मामले में आता है, अटेम्प्ट टू रेप के केस नहीं बनता है। ये जजमेंट उत्तर प्रदेश में एक जज ने दिया हुआ था। वो अलग बात है कि इसके ऊपर में जब बवाल मचा तो उनको जो है वहां से हटा दिया गया, ये जजमेंट को बैक किया गया, पर ये सच्चाई है। दिन दहाड़े बच्ची को घसीटा जा रहा था, पुल के नीचे ले जाई जा रही थी, पुलिस कहीं नहीं थी, लोगों ने वहां पे विरोध करके बच्ची को बचाया। आप उत्तर प्रदेश में हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं एडमिट होने के लिए, वहां पे बच्चे के साथ में दुर्व्यवहार हो जा रहा है, आप थाने में एफआईआर दर्ज करने जा रहे हैं, वहां पे हो जा रहा है। कांस्टेबल अगर अपने घर जा रही है ऑटो से तो उसके साथ में हो जा रहा है, तो आप सोचिए कहाँ पे भय मुक्त है, भय किसी का खत्म नहीं होता, और क्राइम और बढ़ा हुआ है। अभी आप 2024 का अगर कभी एनसीआरबी डाटा जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि 2024 में और गंभीर चोरियां बढ़ी हुई है। आपको जानकारी है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के जो गांव में है वो कहा जा रहा है कि जो जब रात को होता है वहां पे ड्रोन दिखने लग जाते हैं, ड्रोन दिखती है, लोग ड्रोन, गांव वाले ड्रोन देखते हैं, वो ड्रोन के पीछे जाते हैं, इधर पीछे घर खाली, सारे के सारे घर की चोरियां हो जा रही हैं, चोरियां बिल्कुल पीक पे चल रही हैं। क्या नहीं चल रहा है, आतंकवाद चल रहा है भेड़ियों का, और वो 2024 से ही चलता चला आ रहा है। सरकार हमारी उस पर कुछ नहीं कर पाई हुई। बहराइच में भेड़िए 2024 से आना मार्च से चालू किए और अब तक आ ही रहे हैं, लोगों को वहां पे उठा ले जाते हैं, मार देते हैं, और चोरियां बढ़ी हुई है। चोरियां इसलिए बढ़ी हुई क्योंकि रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं तो सब स्विच कर लिया, उनको कुछ ना कुछ तो चाहिए होगा। अभी चला था, आपने देखा होगा यहाँ पे चला कि ड्रोन गैंग चला, ड्रोन गैंग के बाद में अभी अलग गैंग चल गया हुआ है, वो जो पुराने गैंग पहले सुना करते थे हम लोग की गायब हो गए हैं, वो सारे फिर आपको देखने को मिल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कोई चड्डा गैंग हो रखा है, कोई हेलमेट गैंग हो रखा हुआ है, वो चोरियां चल रही हैं। Let me go across to शैलेश पांडे साहब। शैलेश पांडे जी नमस्कार। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। शैलेश पांडे जी, दो चीजें हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बात कहनी पड़ रही है और इसके ऊपर मेरा बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है, बट आई एम वेरी ग्लैड, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, और मैं इसको ये तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शर्म एल शेख नहीं गए, ट्रंप साहब की जो सीज फायर एग्रीमेंट में शामिल होने के लिए नहीं गए। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एडवाइस मिली उनको, बहुत अच्छी सलाह दी गई कि भैया जब वो मेन कैरेक्टर ही वहां पर नहीं है, मतलब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वहां नहीं है और हमास के लोग वहां पे नहीं है, हमास के लोग, अरे वहां पे सीज फायर किसके बीच में हो रही है? और वही हुआ, आज देख लीजिए, हमास इज गॉन एंड दे हैव किल्ड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पैलेस्टीनियंस, बहुत पैलेस्टीनियंस को मार दिया है वहां पे जाकर के। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग जो थे ये मुखबिर बन गए थे इजरायली फोर्सेस के, कोई 50 के करीब लोगों को वहाँ पे मार दिया गया है। सो आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी गुड एडवाइस दैट वाज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर। और दूसरी चीज़ है, जैसे प्रदीप जी और मैं अभी बात कर रहे थे कि स्पेशली नरेंद्र मोदी जी ने एक फिजिबिलिटी स्टडी ऑर्डर करी है सर, पता नहीं आपको इसके बारे में मालूम है कि नहीं। ये फिजिबिलिटी स्टडी है गंगा कावेरी लिंक, ऊपर से गंगा से लेकर के कावेरी तक एक पूरा रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो बनाया जाए। बहुत पुराना प्रपोजल है, 60s का प्रपोजल है, इनफैक्ट पंडित नेहरू के टाइम का प्रपोजल है, उसके बाद आगे बढ़ा नहीं। आई थिंक द फिजिबिलिटी स्टडी हैज जस्ट बीन ऑर्डर्ड एंड आई थिंक द ओनली मैन हु कैन एक्चुअली डू इट इज पॉसिबली नितिन गडकरी साहब। लेकिन नितिन गडकरी साहब से आपने ट्रांसपोर्ट ले लिया, उनको सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया, उनका भैया सिर्फ सड़क बनाओ, उनको तो सड़क मंत्री बना दिया आपने। तो उनको अगर जब तक आप पूरी ट्रांसपोर्ट और सड़क दोनों चीज़ों का, सड़क और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर आप उनको नहीं देंगे तो तकलीफ हो जाएगी सर। वेरी फ्रैंकली आई थिंक नितिन जी शुड बी ब्रॉट बैक टू हिज ओल्ड पोर्टफोलियो। ये मिनिस्ट्री भी उन्हीं को देनी पड़ेगी जहाँ तक मैं समझता हूँ। तीसरी चीज़, 60 नक्सलवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है देवेंद्र फडणवीस साहब के सामने, सो कंग्रेचुलेशंस, विच इज़ फैंटास्टिक। उन्होंने कहा था कि गढ़चिरौली को वो स्टील हब बनाएंगे, स्टील बनाने का हब बनाएंगे पूरे इंडिया का, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं। और उसमें बहुत इजाफा हुआ है। लॉयड स्टील, बाकी जितनी भी अलग अलग हमारी स्टील हैं, उस स्टील कंपनी से उन्होंने वहाँ पे कारखाने वगैरह दोबारा खोलने की
मतलब चेष्टा तो जताई नहीं है, जताई भी है, और उसके बाद प्रदीप जी फाउंडेशन स्टोन भी वहाँ पे लग गए हैं। आई थिंक सम वर्क काम भी चालू हो गया। इनफैक्ट जितने नक्सल सरेंडर कर रहे हैं इसी है कि पूरे डेवलपमेंट आ गया, अब नौकरी भी मिलेंगी सबको, नौकरी भी मिल रही है, सबसे बड़ी बात है, सबको एब्जॉर्ब भी करेंगे। It's actually there because what had happened was that there was nobody who was going there. I think Devendra Fadnavis is the first chief minister really to have gone there. मैंने ये एक्सपीरियंस शायद आपको बताया हुआ है शैलेश पांडे जी, जब हमारे आदरणीय सम्मानीय बहुत बड़े आर पाटिल साहब हुआ करते थे होम मिनिस्टर, मुझे अभी तक याद है, वहाँ पे नक्सलवादी वो हुआ था, काफ़ी कांड हो गया था, हम लोग तो वहीं थे। अब उसके आगे जब हम लोग जाएँ गढ़चिरौली के आगे, तो भाई साहब सर्किट हाउस से ही बाहर ना निकले। मैं कहा सर हम तो जंगल में आ जाओ आप, कहता नहीं यार मुझे यहाँ पे मना कर दिया गया है, हम नहीं आ सकते। एंड देवेंद्र फडणवीस एक्चुअली स्पीकिंग इज गॉन एंड टुवर्ड द एंटायर एरिया व्हिच इज फैंटास्टिक। लेकिन सर आप ये बताएं कि बार बार जैसे बिहार के अंदर हो रहा है, आपने मुख्यमंत्री रोजगार योजना लाई, रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये आपने जाकर के हर महिलाओं के बैंक अकाउंट में आपने डाल दिए। सर क्या जो महाराष्ट्र का जो टेम्पलेट है, मध्य प्रदेश का जो है, वहाँ पे लाडली बहन योजना थी, यहाँ पे लाड़की बहन योजना है, आपने वही चीज़ हरियाणा में इस्तेमाल करी, वही चीज़ अब आप बिहार में इस्तेमाल कर रहे हैं। पैसे दो और इलेक्शन जीत जाओ। अब 10,000 रुपये के सामने कोई क्या आर्ग्यूमेंट करेगा सर? क्योंकि सामने की जो पार्टी है वो तो सिर्फ वादा कर सकती है ना, वो कहें भाई हर फैमिली में एक सरकारी नौकरी देंगे, आज जब देंगे देखा जाएगा। अब यहाँ तो पैसे आ गए, तो सर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी तो वोट खरीद रही है। आप लोगों ने 10,000 बांट दिए, 7,800 करोड़ कितने देगा? 7,850 करोड़ यू ऑलरेडी स्पेंट इट। शैलेश पांडे जी बोलिए, अब आप बोलें सर, मैंने तो बोल दिया जितना बोलना था, उसके बाद प्रदीप जी पूछेंगे आपसे, लेकिन इसका जरा सवाल का जवाब दीजिए सर। देखिए राजीव जी, बिहार में जो कुछ किया जा रहा है ये एक महिला सबलीकरण, महिला सक्षमीकरण के दिशा में एक नया कदम है बिहार के लिए। और देखिए महाराष्ट्र हो चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा है, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां महिला सक्षमीकरण, महिला सबलीकरण के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं, और ऐसे कदमों के कारण वहां पर महिलाओं का उत्थान हो रहा है। और ये हमें फीडबैक भी अच्छी तरह से मिल रहा है कि वहां पर उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। दूसरी मैं ये बताना चाहूंगा कि किसी भी महिला माता बहन को अगर हम 8,000 रुपए दे रहे हैं, तो इतने 8,000 रुपए से किसी का पूरा घर नहीं चल जाता है। वो कोई एक 10,000 ये नहीं, 10,000 हो 8,000 हो, लेकिन कहीं न कहीं उनके जीवन को सक्षम बनाने के लिए वो जो बहनें अबला रहती हैं, जो बहनें कहीं किसी पे डिपेंड रहती हैं, आज उनको एक तरह का प्रोत्साहन देने का, एक तरह का उनको पैर पे खड़ा होने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए ये सरकार के द्वारा उठाया हुआ कदम है, जो कि बहुत ही कारगर कदम है। कारगर होता तो महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना के बाद जिस प्रकार से महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना महायुति की सरकार क्लीन स्वीप की, ये आपने अपने आंखों से देखा है किस प्रकार से महिलाओं ने महायुति की, और ये चुनाव के पहले याद आया अपने सर माथे पर बिठाया। और हम पूरे देश में महिला सक्षमीकरण, महिला सबलीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारी जो विचारधारा है वो यत्र नारस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नास्तु न पूजन्ते तह सर्वत्र आपला क्रिया की है, नारी को नारायण की है। और ये आज इसीलिए देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज जो 33% रिजर्वेशन इस देश के अंदर महिलाओं के लिए लाया है, ऐसे अनेक उपक्रम, अनेक कार्य हम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। और आगे चुनाव के एकदम पहले इतने साल से तो किया नहीं सर, अभी याद आ गया। पांडे जी, अयोध्या आज स्पिरिचुअल, ग्लोबल स्पिरिचुअल हब बन गया है, ग्लोबल टूरिस्ट हब बन गया है। रामलला के इनविटेशन के लिए जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ दीप उत्सव, उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ऐसे स्तर पर जब अयोध्या वर्ल्ड टूरिज्म हब बन गया है, वर्ल्ड स्पिरिचुअल हब बन गया है, तो सिक्योरिटी के हिसाब से अगर योगी आदित्यनाथ जी ने धमकी दिया है कि यमराज भी है, जेल भी है, तो आलोचना किस लिए? सिक्योरिटी है आज, सुरक्षा एब्सोल्यूट सुरक्षा नहीं है तो ग्लोबल हब कैसे बनेगा स्पिरिचुअल टूरिज्म का? क्या योगी जी ने गलत कहा? पांडे जी, योगी जी ने बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रत्येक हिंदू त्योहार पर पूरी तरह से सुरक्षा होनी चाहिए देश की, राज्य की। और उत्तर प्रदेश में
जो इसके पूर्व घटनाएं घटी हैं उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अगर योगी आदित्यनाथ जी ने अपने प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा की बात कही है तो बिल्कुल सही कहा है। देश उत्तर प्रदेश उनके बातों का समर्थन करता है। हम नहीं चाहते कि जिस जैसी घटनाएं इसके पहले हुई हैं, चाहे वो नवरात्रि के विसर्जन में या अन्य हिंदू धर्म के जो तीज त्योहारों में जिस प्रकार से विधर्मियों के द्वारा वहां पर उसमें अड़ंगा लगाया गया, उसमें अटैक किया गया, उसमें पत्थरबाजी की गई, अब ऐसी घटनाएं योगी राज में, मोदी राज में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। और यही चेतावनी योगी जी ने दिया जो बिल्कुल सही है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं मेरी बहन डॉक्टर मिश्रा जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं उनका स्वागत करता हूं और मैं इसलिए भी स्वागत करूंगा कि वो उस तीर्थराज प्रयाग की धरती की हैं जहां जो मेरा जन्म स्थान है। मुझे गर्व है मेरी उस मिट्टी पर, मेरी उस जन्मभूमि पर, तीर्थराज प्रयाग पर। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी बहन डॉक्टर मिश्रा ने जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में के अत्याचार और अपराध की दुनिया की बात को बड़े ही विस्तार से रखा। मैं पूरा ध्यान से सुन रहा था। वो 20 से 22 मिनट आपने उनको मौका दिया, पूरी बात उन्होंने अपराध की रखी। लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस धरती से वहां पर पढ़ाई किया, प्रयागराज से मेरी बहन डॉक्टर मिश्रा जी ने, वहां पर वो राजूपाल के हत्यारों के बारे में आपने नहीं कहा। आपने उत्तर प्रदेश के हर जिले में जो एक विधर्मी माफिया का राज चल रहा था, आपने उसका जिक्र नहीं किया। आपने मुख्तार अंसारी का जिक्र नहीं किया। आपने राजूपाल के हत्यारे का जिक्र नहीं किया जो आपके उस प्रयागराज में राजूपाल की हत्या की गई थी। आपने उनका भी जिक्र करना चाहिए था। लेकिन इन सारे विधर्मी माफिया हर जिले में एक एक अब्दुल खान अंसारी, ये जो विधर्मी जो माफिया राज बना के रखा था सपा और कांग्रेस के शासन में, उनका विनाश करने का काम अगर उत्तर प्रदेश में किसी ने किया तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने किया। मैं सराहना करता हूं, बधाई देता हूं उनको, और उन बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उन बाबा ने, योगी जी ने सारे अपराधियों का, माफियाओं का नाश करके आज उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में वो काम कर रहे हैं। आज अब मजाल नहीं है किसी अपराधी की कि किसी भी प्रकार का सामूहिक अपराध कर सके, किसी भी हिंदुओं को डरा सके, हिंदुओं के त्योहारों में, तीजों में, उनके रैलियों में, उनके प्रदर्शन में कोई पत्थरबाजी कर सके। आज कोई भी अगर इस प्रकार का कृत्य करता है तो बुलडोजर चलता है, कोई भी इस प्रकार का कृत्य करता है तो बाबा का डंडा चलता है। वहां पर अलग अलग मिशन चल रहे हैं। और ये देश आज सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, मैं महाराष्ट्र की धरती से बोल रहा हूं। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की धरती से बोल रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना मोदी जी और योगी जी ने किया है। और इस प्रकार से अब किसी भी हिंदू तीज त्योहारों में कोई भी ये इस प्रकार का अड़ंगा अगर डालेगा सर, तो उसको इमराज सर एक छोटा सा एक नंबर आपको बताता हूँ। ऐसा मैं पूरी शैलेश जी एक छोटा सा नंबर आपको बताता हूँ मैं। 2022 और 2023 में आई एम श्योर डॉक्टर पूजा मिश्रा विल एग्री विद मी, 65,743 केसेस अगेंस्ट विमेन, 65,743 केस हुए हैं और वो हाईएस्ट है किसी भी स्टेट के लिए पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन एंड हियर देयर इज अ कैच, आई वुड लाइक आफ्टर आई हैव स्पोकन टू यू, आई वुड लाइक पूजा मिश्रा जी टू रिएक्ट ऑन दिस। उनका ये मानना है योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट का कि ये इंक्रीज जो हुआ है तकरीबन 10,000-15,000 केसेस इंक्रीज हुए फ्रॉम 2021 से जब तक हम 23 में आते हैं तो 15-20 हज़ार केसेस का इजाफा हुआ है। इसकी दो वजह हैं, एक तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन जो बढ़ी है। नंबर दो, उनका कहना यह है, स्पेशली जो होम मिनिस्ट्री है उत्तर प्रदेश की, कि हम लोगों ने बहुत बड़े इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे कि किसी भी महिला के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ है या कोई कुकर्म हुआ है या किसी ने उनको हैरेस किया है या क्राइम हुआ है तो ई फाइलिंग की सुविधा हम लोगों ने उनके सामने रखी है।
और वो एनोनिमसली भी रिपोर्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से ये जो केसेस हैं, दीज आर रजिस्टर्ड केसेस बाय द वे, उसके नंबर में इजाफा हुआ है। तो कुड दैट बी द रीजन सर? क्या ये हो सकता है शैलेश पांडे जी कि ज्यादा महिलाएं सामने आ रही हैं रिपोर्टिंग को लेकर के? क्योंकि योगी जी का ये मानना है कि अब महिलाओं को हमारी पुलिस पे और हमारी सरकार पे विश्वास है, इसलिए उनके खिलाफ जो गुनाह हो रहे हैं वो एक्चुअली रिपोर्ट कर रही हैं। शैलेश पांडे जी। राजीव जी, वही बात तो मैं आपको बता रहा था कि उत्तर प्रदेश में इनके कार्यकाल में ऐसा माहौल था कि लोग पुलिस स्टेशन तो छोड़िए, अपने साथ हुए अत्याचार अपराध की चर्चा परिवार में भी नहीं करते थे, पड़ोसी को भी नहीं पता चलता था। इतनी दहशत था, इतना डर था। आज योगी राज में जो जनमानस में वो डर निकल गया है, क्योंकि हर जिले में माफिया होते थे साहब, हर जिले में अंसारी होते थे। आज उनके दहशत रहती थी, लोग बोल नहीं पाते थे, पुलिस स्टेशन नहीं जा पाते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी ने, आपने देखा होगा, पुलिस का जो राजनीतिकरण हुआ था, पुलिस के राजनीतिकरण को खत्म किया है। मैं आपको अंदर की बात बताता हूं कि यहां तक कि राजनीतिक के बड़े बड़े लोग भी आज ये पीछे से कहते हैं कि इस वक्त योगी जी ने पुलिस को बहुत टाइट करके रखा है, पुलिस जल्दी किसी की बात सुनती नहीं है, वो न्याय की बात करती है, बहुत कठोर हो गई है पुलिस। ये योगी राज का फल है। डायरेक्ट बड़े बड़े अधिकारियों को मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना पड़ता है, और मुख्यमंत्री भी एक छोटे छोटे केस में डायरेक्ट पुलिस वालों को संज्ञान में लेकर न्याय की व्यवस्था कराते हैं। अत्याचारियों पर उनका हंटर चलता है, उनका बुलडोजर चलता है। आज अगर दहशत किसी की है तो बाबा योगी आदित्यनाथ की अपराधियों पर है। बुलडोजर पांडे जी, बुलडोजर बुलडोजर यहां पर भी आपने पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में आई लव देवा भाव बुलडोजर के साथ आपने पूरे महाराष्ट्र में सजा दिया है। आई लव देवा भाव, आई लव देवा भाव, आई लव बुलडोजर। ये किस इसका मतलब क्या है? आप कोई कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो? बिकॉज बुलडोजर हमने देखा भी, वो जो आई लव मोहम्मद वाले रॉयड्स के जितने एक्यूज थे, वहां बाबा योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर चला दिया। इन स्पाइट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहा कि मैं बुलडोजर जस्टिस के खिलाफ हूं, चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मगर सब जगह आज महाराष्ट्र मुंबई में आपने पांडे जी पार्टी ने आई लव देवा भाव और बुलडोजर के फोटो डाल के रखा है। क्या इसका मतलब क्या है पांडे जी? देखिए प्रदीप जी, जहां जहां भी अनधिकृत और अतिक्रमण होगा वहां बुलडोजर चलेगा। मुझे बताइए, देवा भाव ने महाराष्ट्र में कौन से ऐसे प्रोजेक्ट पे या जगहों पे, स्थानों पे बुलडोजर चलाए जो अधिकृत थे? बिल्कुल नहीं। जहां अनधिकृत कार्य हुआ, जहां आपराधिक कार्य हुआ, वहीं पर बुलडोजर चला है और भविष्य में भी चलता रहेगा। और इस महाराष्ट्र की जनता जो है वो इसीलिए देवा भाव को पसंद कर रही है, इसीलिए देवा भाव को आई लव देवा भाव कह रही है, क्योंकि देवा भाव यहाँ से अपराध, देवा भाव यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर मैन बन चुके हैं, मेट्रो मैन बन चुके हैं। आज सर कांग्रेचुलेशंस फॉर द न्यू मेट्रो। अरे सर एक सेकंड अरे एक मिनट सर, आप ही की बात कर रहा हूँ, एक मिनट। क्योंकि आपके सामने बात नहीं हुई है, वो जो मेट्रो है अंडरग्राउंड, वो हमारे ऑफिस के बिल्कुल साथ में से जाती है। पूजा मिश्रा जी, जब आप आएंगी ना मुंबई जब आप आएंगी, अरे 40 किलोमीटर का अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने का काम आज हुआ। आरए से लेकर के मंत्रालय तक यू कैन रीच इन 29 मिनट्स, 29 मिनट में, नो ट्रैफिक नो नथिंग। अभी तो बहुत बढ़िया चल रहा है सर। 14 मेट्रो लाइन है, पूरा हाईवे इंटरकनेक्टिविटी, एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट, 3 एयरपोर्ट मुंबई के अगल बगल 3 एयरपोर्ट, और हर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट। अरे शैलेश पांडे जी, जो पांडे जी बोल रहे हैं वही मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूं। पांडे जी कुछ बोल रहे थे। प्रदीप जी अरे सर वो आप बोलिए। लेकिन आदित्य ठाकरे जी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे थे कल, और उन्होंने कहा कि यार पिछले 4 दिन से इतना जबरदस्त जैम यहाँ पे लगा हुआ है, मैं यहाँ पे अटका हुआ हूँ 4 घंटे से। एक्चुअली 4 घंटे वाज एन एग्जैजरेशन, 1 घंटा 10 मिनट के लिए वो अटके रहे वहां पे। तो अब आप बताएं
मेट्रो चला दी, बाकी सब चल गई, और अभी भी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे इतना बड़ा जाम कैसे है सर? शैलेश पांडे जी आप बताइए। देखिए प्रदीप जी, राजीव जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी मैं खुद एक ऐतिहासिक क्षण का मैं गवाह बना। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं नई मुंबई के उलुमे में आए। उन्होंने अपने शुभ हस्तों से नई मुंबई दीवा पाटिल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उसके साथ ये 40 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो का उद्घाटन किया। आज मुंबई और महाराष्ट्र को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का, विकास का सौगात पर सौगात दे रहे। महाराष्ट्र को सर्वोच्च राज्य है ही, लेकिन और सर्वोत्तम बनाने में नरेंद्र मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी दिन रात लगे हुए हैं। आज एक मेट्रो सिटी, मेट्रो मैन देवेंद्र जी बनकर आज मुंबई के हर तरफ जाल बिछा दिया है मेट्रो का। मैं जिस शहर में रहता हूँ, मीरा भाईंदर शहर तक मेट्रो आ गया है, यहाँ पर उसका प्रशिक्षण हो गया। ठाणे शहर में, ठाणे जिला में उसका प्रशिक्षण हो गया है। नई मुंबई मेट्रो पहुंच गया है। आने वाले समय में वसई विरार तक मेट्रो जा रहा है, और उसके साथ ही बड़े बड़े हाईवे, बड़े बड़े कनेक्टिविटी। मुंबई के अंदर आपने देखा अटल सेतु, मुंबई के अंदर आपने देखा किस तरह से कोस्टल रोड, मुंबई के अंदर और थाने जिले के अंदर पूरे MMR रीजन में, नई मुंबई में देखा किस तरह से रोड का जाल बिछाया गया है। आज ट्रैफिक को कम करने के लिए अनेक प्रकार के भुयारी मार्ग भी बनाए जा रहे हैं। बोरीवली नेशनल पार्क से थाना के अंदर जो नेशनल पार्क जंगल है, उसके अंदर से वो भुयारी मार्ग बनाया जा रहा है, सुरंग बनाया जा रहा है, ताकि हमें जहां 2 घंटे लगते थे वहां हम 20 मिनट में पहुंचे। आज मैं मेरे शहर की बात करता हूं, काशीमीरा चेकनाका जंक्शन से हम जब गोल्डन सर्कल स्वतंत्र वीर सावरकर चौक तक आते थे, आधा घंटा लगता था। जब जाम हो जाता था 1 घंटा लगता था। आज 1 घंटे की दूरी को हम 10 मिनट में तय कर रहे हैं। और यही हाल पूरे मुंबई का है, पूरे ठाणे का है, पूरे MMR रीजन का है, नई मुंबई का है, वसई विरार, मीरा भाईंदर का है। और हर जगह पर आज विकास, विकास और सिर्फ विकास हो रहा है। वार्ड 1 बंदरगाह बनाकर 1 लाख से ज्यादा नया रोजगार देने का काम कर रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा करके गए हैं कि डहाणू के वार्ड 1 बंदरगाह के साथ साथ वहां पर वार्ड 1 एयरपोर्ट का भी विकास किया जाएगा। आज नई मुंबई के उल्वे में जो एयरपोर्ट बना है, जिसके वजह से पूरा नई मुंबई, रायगढ़, ठाणे जिला, 2-3 जिलों में इसका बहुत फर्क पड़ेगा। आज अमरावती में वस्त्र उद्योग पार्क बना है, जिसके वजह से विदर्भ के अंदर इंडस्ट्री और उस प्रकार की रोजगार का सृजन होगा, रोजगार बढ़ेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से हो, विकास की दृष्टि से हो, रोजगार की दृष्टि से हो, और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन मान को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और हमारी जो मूल विचारधारा, आपके 25 मिनट हो गए। उन्होंने 22 मिनट बोला, आपने कोई 25 के 26 मिनट बोला, क्योंकि पांडे जी आप गिन रहे थे, मैंने भी गिना है। तो मैं जाता हूं डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास। डॉक्टर साहब, अब आप ये बताएं। मैं पहले पूजा मिश्रा जी का इसलिए स्वागत करूंगा कि वो मेरे जन्मभूमि प्रयागराज सर, आपने स्वागत करता हूँ। और उन्होंने अभी PhD करी है सर, D.Phil मिली है उनको अभी, उसके लिए भी बहुत बधाई उन्हें, बहुत बधाई। डॉक्टर मिश्रा, Is it true that women have now more confidence? इसलिए क्योंकि रिपोर्टिंग ज्यादा हो रही है, इसलिए केसेस बढ़ गए हैं। Is that true, मैम? क्योंकि महिलाओं में ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ऐसा योगी जी बोल रहे हैं। जी बोलिए मैम। राजीव जी, अगर यही बात होती तो समाजवादी पार्टी सरकार ने 10-90 चलाया था जी। 2012 में, मुझे याद है क्योंकि मैंने 2012 में ज्वाइन किया था ग्रेजुएशन, तो 10-90 चलाया गया। तो 10-90 की ये सहूलियत थी कि आपका कंप्लेंट दर्ज किया जाएगा, और जो भी आपको हरास कर रहा होगा उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर में कंप्लेंट किसने दर्ज कराया। अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है और मुझे उस पर डाउट आ रहा है, तो मैं बिल्कुल लोकेशन बताते हुए, टाइमिंग बताते हुए कंप्लेन कर सकती हूँ, और उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि ये कंप्लेन करने वाला महिला कौन है। तो तब तो जो है इस हिसाब से फिर तो बहुत पीक पे होना चाहिए था कंप्लेंट की संख्याएं, लेकिन 10-90 पे जो है होते हुए अभी कंपेयर कर ली जाए महिला के प्रति अपराधों में, वो नहीं है। और जो डायल 100 जो अभी 112 हो रखा हुआ है, उसका भी आधुनिकीकरण समाजवादी पार्टी सरकार ने किया हुआ था। उसका रेस्पॉन्स सिस्टम समाजवादी पार्टी सरकार ने सही किया हुआ था, पूरा का पूरा हेडक्वार्टर समाजवादी पार्टी सरकार ने बनाया था। तब तो फिर और पीक पे जाना चाहिए। ये अपनी गलतियों को छुपाना है। आप क्राइम को डिक्रीज नहीं कर पाए हुए हैं क्योंकि आपको पोस्टर बॉय बनना है। आप चाहते हैं कि क्राइम बढ़े, फिर उसके बाद में आप कहेंगे एक्शन लिया जाएगा। आप क्राइम को नहीं घटाना चाहते हैं। अभी भाजपा के प्रवक्ता उन्होंने बड़ा इलाहाबाद की बात करी कि आपने राजूपाल हत्या की बात नहीं की। आपको राजूपाल हत्या की बात करनी चाहिए। आपको जवाब, आई डिडंट इंटरप्ट यू विद ड्यू रेस्पेक्ट।
This is my time. I didn't interrupt you. राजू पाल हत्या अगर आपको ध्यान आ रही है तो बिल्कुल बहुत गलत हुआ। क्यों आप प्रयागराज? आप जवाहिर यादव के हत्यारों को जानते हैं? शैलेश पांडे जी, जवाहिर यादव भी प्रयागराज कह दिया है। मुझे गर्व है प्रयागराज पर। इलाहाबाद का नाम बदला क्या? यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का नाम बदला क्या? इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम बदला क्या? नहीं बदलेगा भी। मैं जिला की बात कर रहा हूँ, मैं शहर की बात कर रहा हूँ। जिला का नाम बदला हुआ है। क्या इलाहाबाद इलाहाबाद का नाम बदला नहीं बदला गया आपसे? तो इलाहाबाद बैंक का नाम बदला क्या? आपके इलाहाबाद बैंक का नाम नहीं बदला गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नाम आप नहीं बदल पाए और आप नाम में उलझे हुए क्यों? क्योंकि राजू पाल समाजवादी पार्टी वो गलत रहा। उनकी हत्या की गई इलाहाबाद में दिन दहाड़े एक छोटी से चला करके और भाजपा के विधायक उनको प्रयागराज के नाम से बाहर छोड़ रखा हुआ है। आप फंसे रहिए नाम में, उत्तर प्रदेश को नाम में उलझाते रह रहे हैं। धरातल की बात कर ली जाए। अब इनको इस चीज का आपत्ति हो रही है। जो भी इलाहाबाद का है वो इलाहाबाद ही बोलता है जी। लेकिन मैम उसमें अगर राजीव जी ये भी इलाहाबाद रह रहे होते हैं, उनके मुंह से भी इलाहाबाद ही निकल रहा होता। ये रहे नहीं ना, इलाहाबाद निकलता बहुत टाइम लगता है वो नया नाम आने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं है। प्रयागराज कहने में क्या जाता है? आप नहीं बदला, प्रयागराज नहीं। क्राइम तो इतना कम है उत्तर प्रदेश में राजीव जी। आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे गौ तस्कर जो है वो गन डाल करके किसी बच्चे के मुंह में मार दे रहे हैं। ये क्राइम कम हो रखा है उत्तर प्रदेश में। आई बेग योर इंडल्जेंस मैम, 1 सेकंड। मे आई आंसर शैलेश पांडे जी? शैलेश पांडे जी, प्रयागराज कोई नई बात नहीं है सर। प्रयागराज बहुत पुराना शहर था। मुगलों के जमाने में भी एक प्रयागराज था। इलाहाबाद के बिल्कुल साथ में जो संगम है उसको हमेशा प्रयागराज कहते थे। हमेशा प्रयागराज कहते थे। अब पूरे शहर का नाम प्रयागराज दे दिया गया है धीरे धीरे करके। जैसे बॉम्बे और मुंबई कई लोगों के नाम से प्रयागराज हो गया। सर पूरी बात तो सुन लो। जिला का नाम अरे सर पूरी बात तो सुन लो। मिर्जापुर बॉर्डर, अरे अंकल पूरी बात तो सुन लो। बनारस बॉर्डर तक जाता है, उस पूरे जिला का नाम प्रयागराज है। मालूम है सर, मालूम है सर, मालूम है। लेकिन कहने में क्या दिक्कत है? समाजवादी किसी को नहीं, किसी समाजवादी पार्टी प्रयागराज को नहीं कहना चाहती। क्यों अभी भी इलाहाबाद किसको? अच्छा मेरी बात सुने सर, आप मेरी बात सुने। आप इलाहाबाद अच्छा मेरी बात सुनिए। अच्छा आप किसी को अच्छा शैलेश पांडे जी, शैलेश पांडे जी मान्यवर, आप मुगलों की गुलामी सम्मान करते हुए आपका सम्मान करते हुए सर मुगल बहुत अच्छे भी थे। आज की तारीख में जो हनुमान चालीसा हमारे पास है ना, गुलामी मानसिकता से बाहर सर आप भी निकलिए, आप भी निकलिए। मैं हनुमान भक्त हूं। तभी तो अरे पूरी बात सुन लीजिए सर। आज की तारीख में शैलेश पांडे जी बात सुनिए जरा ध्यान से, और इसके ऊपर मैं किसी भी कोर्ट में जाने के लिए तैयार हूं। पूरी एविडेंस है मेरे पास। आज की तारीख में जो आपके पास रामायण है ना, रामचरितमानस, वो किसकी देन है जानना चाहेंगे? वो राजा टोडरमल और बादशाह अकबर की देन है। हनुमान चालीसा जो है ना, वो किसकी देन है? राजा टोडरमल और बादशाह अकबर की देन है। अगर मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। वेरी फ्रैंकली, काशी के पंडों ने संत तुलसीदास की ऐसी की तैसी करती थी, यहां तक के गुंडे भेजे थे आश्रम में जलाने के लिए कि इसने अवधि में कैसे लिख दी। उसके बाद वो भाग के गया अपने दोस्त के पास, राजा टोडरमल के पास, कि भैया तूने बोला था लिख लिख लिख, अब तू इसको संभाल। सर ही वाज गिवन प्रोटेक्शन बाय द मुगल एम्परर। और उसके बाद एक और चीज हुई, बादशाह अकबर ने महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाया, उसको इलस्ट्रेट करवाया, और जितने 54 गवर्नर हुआ करते थे किसके? मुगल एम्पायर के, सबको भेजा गया, और उसके साथ में 56 भोग भी भेजा गया दिवाली के वक्त। ये भी आपको बता दूं। तो हर एक कोई ऐसा नहीं होता है, पीपल चेंज ऑल्सो। लेकिन मैं आपको ये बात बोल रहा था कि जैसे बॉम्बे, अरे सर जैसे बॉम्बे तो बताइए, औरंगजेब कितना क्रूर था ये भी तो बताइए, कितने मंदिरों को तोड़ा ये भी तो बताइए। सर औरंगजेब वो शख्स है, महिमा मंडल इस देश में नहीं चलेगा राजीव जी। यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज महान। औरंगजेब
का जहां तक प्रश्न है, महाराज मान यहाँ पे महिला मंडल इस देश में हम तो नहीं बर्दाश्त करते। शैलेश पांडे साहब, आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं तो सिख फैमिली से हूं, हमारे 4 बादशाह, हमारे 4 साहिबजादे, 2 को दीवार में चिनवा दिया, 2 को मतलब पकड़ के उनकी गर्दन काट दी आनंदपुर साहब के सामने। सर किसकी बात कर रहे हैं आप? गुरु तेग बहादुर और उनके 3 साथियों को उनका सर धड़ से कलम कर दिया चांदनी चौक पे। सर हम तो वो लोग हैं, औरंगजेब की बात ही ना करें। मुगलों ने किया ना, तो हम उन मुगलों का महिमा मंडन, हमारे गुरुओं की हत्याएं। लेकिन सर बॉम्बे का नाम, जैसे बॉम्बे का नाम मुंबई है। सर मैं कुछ और बात कर रहा था। सुन सकते हैं सर? नहीं सुन सकते हम। मेरी आप पूरी बात सुनिए। बिल्कुल नहीं सुनेगा। अच्छा ठीक है, नहीं सुनिए, वेरी गुड, नहीं सुनिए, ओके, आई एग्री विद यू। लेकिन अब अगली बार जब आपका कोई काम रहेगा प्रयागराज में, जहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही लिखना पड़ेगा। आपका जब काम रहेगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो आप इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट नहीं लिख सकते। जैसे आज की तारीख में भी मुंबई हाई कोर्ट नहीं है सर, बॉम्बे हाई कोर्ट है। यू कांट चेंज इट। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी नहीं है सर, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है। उसके लिए इतना लंबा प्रोसेस है कि लोगों ने कहा बहुत अच्छा है, वो प्रोसेस करने की जरूरत ही नहीं है। I would like Dr. Pooja Mishra to finish. Dr. Pooja Mishra, you were saying something. Sorry for the interruption, ma'am. Please go ahead. जी बोलिए। जी राजीव जी, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है, मैं बस शॉर्ट में कुछ चीजें कह दूंगी। जैसे इन्होंने बोला इलाहाबाद में राज्यपाल की बात करनी चाहिए, तो जिस तरीके से राज्यपाल हत्या चर्चित है, वैसे ही जवाहिर यादव का भी चर्चित है। AK-47 चलाया गया था जवाहिर यादव के ऊपर में। किसने चलाया था? करवरिया बंधुओं ने चलाया था। और करवरिया बंधु भी कहाँ पे हैं? करवरिया बंधु जेल से बाहर आकर के अपनी राजनीतिक विरासत बना रहे हैं, क्योंकि वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो राजनीतिक विरासत बनाने में लग गए। उनका व्यवहार बड़ा अच्छा है, खुले सड़क पर जो है दौड़ा करके AK-47 चलाया गया। इलाहाबाद के इतिहास में पहली बार AK-47 चला हुआ था। आपको अगर बात ही करनी है माफियाओं की, तो पूरा भरपूर बात करिए ना। इनके पार्टी में राजभर है, अब्बास अंसारी राजभर की पार्टी से विधायक है। वो विधायक इनके गठबंधन में ये काउंट करते हैं कि हाँ ये हमारे विधायक का हेड है, सरकार बना रखा हुआ है। उसके बाद में अभी इतना इंटरवीन कर रहे हैं। आपने लगातार बोला मैंने आपको इंटरवीन नहीं किया, और आपको जरा आप डर क्यों रहे थे? मैं यहाँ का पैदा हुआ हूँ, केस किया गया था, आप डर क्यों रहे? फंसाया गया था सर, आप डर क्यों रहे? मानिए वो न्यायालय ने उन्हें पूजा मिश्रा जी की बातों से डर क्यों रहे? कहाँ बरी किया भाई? उन्होंने सजा याद थे, उम्र कैद थी उनको, व्यवहार अच्छा करके उनको छोड़ा गया। अभी दूसरा भाई जेल में ही है। आपको जानकारी भी है कि नहीं है? जानकारी है भी कि नहीं है? आप झूठी बातें मत बताइए। ये जो सच्चाई है पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, और उत्तर प्रदेश में तो इतना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है कि मुंह में और फिर मारते हैं। खुद अपराधी रहे हैं, उत्तर प्रदेश सब अपराधी रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अब ये अपराध कम करने की बात करते हैं, लगातार इंटरव्यू कर रहे हैं। आप मुझे देखिए, अब दूसरे चैनल पे जाना है। आप जाने के पहले जो है मैंने one final question, ma'am, one statement, one line only. आपके मुताबिक क्या उत्तर प्रदेश अभी ज्यादा सुरक्षित है या बिल्कुल वैसे का वैसे ही है जैसे 20 साल पहले था? पूछ रहा हूं आपसे। उत्तर प्रदेश उससे हॉरिबल हो गया हुआ है, क्योंकि पहले अगर 20 साल पहले ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश सेफ नहीं है, तो लोगों को पता तो था, अलर्ट तो रहते थे। अभी जो बाहर से नागरिक आते हैं ना, उनको इतना बता दिया गया हुआ है बाहर से दिखा करके कि नहीं अच्छा है, उनके लिए हॉरिबल हो जाता है। वो योगी आदित्यनाथ, मायावती ने कहा कि योगी आदित्यनाथ इज डूइंग वन वर्ड फ्रॉम यू, योगी आदित्यनाथ डूइंग द फैंटास्टिक जॉब। मायावती जी ने योगी आदित्यनाथ का तारीफ किन बेसिस पे किया वो भी तो सुनिए। उन्होंने कहा मैंने पत्र लिखा, पत्र का संज्ञान लिया माननीय मुख्यमंत्री जी, परिनिर्वाण दिवस था जो सॉरी मैं नाम भूल जा रही हूँ, मानव काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था, और उनका जो वो पार्क बना हुआ है ना, तो उन्होंने कहा इस पार्क के रखरखाव के लिए मैंने पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उसका टिकट का रेंट आता है, उसका पैसे से इसका रखरखाव कराया। जबकि माननीय मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने ये प्रावधान बना दिया था कि
वो जो टिकट है, टिकट के पैसे जो है उसके रख रखाव में ही इस्तेमाल किए जाएंगे, वो कहीं और नहीं जाने वाले हैं। और जब हमारी सरकार थी तो 2014 में हमने ई टिकटिंग की सुविधा की ताकि वो जो पैसे वो पारदर्शिता तरीके से रहे और उनका यूटिलाइजेशन उसकी रखरखाव में पारदर्शिता तरीके से हो सके। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो पूरे के पूरे पौधे के भी डिटेल दे दिए हुए हैं। देखिए, मायावती जी ने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वाए गए, तो उसी से डर करके उन्होंने अब एक लाइन तय कर दी हुई है आनंद के लिए, अपने भतीजे के लिए, कि देखो अगर तुम्हें राजनीति करनी है बसपा की तो तुम्हें भाजपा की तारीफ करनी पड़ेगी, भले तुम चाहे यही मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहा है और वो कर दे रहा है। तो अखिलेश जी का फॉर्मूला क्या डगमगा गया है मायावती के आने के बाद, मायावती सीन में आने के बाद? क्या आपका पीडीएफ फॉर्मूला, सक्सेसफुल फॉर्मूला, क्या वो डगमगाने लगे? हाउ डू यू सी दैट? प्रदीप जी, मायावती जी जब तक आकर के फुलफीज में चुनाव ही नहीं लड़ेंगी, वो धरातल पर है ही नहीं। अब हम तो चाहते हैं वो आए और लड़े चुनाव, ये बहुत जरूरी है लोकतंत्र के लिए कि आप जो है चुनाव में पार्टिसिपेट करिए। चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं और मायावती जी अभी भी बी टीम की तरीके से काम करना चाह रही थी, पहले भी वो बी टीम की तरीके से काम कर रही थी। जो युवा है आज का, हम किसकी बात कर रहे हैं? जब मैंने राजनीति शुरू की हुई थी तब मैं 18 साल की थी, अब मैं 30+ हो रखी हुई हूँ, आप सोचिए। और तब से मायावती जी नहीं है, वो धरातल पे नहीं है। ये 18 से लेकर के जो युवा वोट करने जा रहे हैं उन्होंने देखा ही नहीं कि मायावती जी ने कभी उनके लिए मुखर होकर के आवाज उठाया। आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि जिनके लिए आपने कभी आवाज नहीं उठाया, आप सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेशन और हाइबरनेशन में रहे हो, आज अचानक से आप आकर के आपने रैली कर दी और वो बिल्कुल हो जाएंगे कि हाँ, जब हम पे लाठियाचार्ज की जा रही थी, जब हमसे नौकरियां छीनी जा रही थी, जब हमें कहा जा रहा था नॉन फाउंड सुटेबल, तब जो है मायावती जी सो रही थी और आज आकर के रैली कर ली तो हमारे अधिकार की बात कर रही है। तो ऐसा नहीं होने वाला है। जब मायावती जी ने भारत बंदी का ऐलान किया हुआ था, हमारे होम मिनिस्टर ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया था, तो समाजवादी पार्टी ने तब भी समर्थन किया था इनका कि ये सही डिसीजन ले रही हैं, इनमें समर्थन होना चाहिए। तब छात्र सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से निकले थे कि बाबा साहब ने का जो है अपमान हुआ है, हम प्रोटेस्ट में जा रहे, तो फिर वो देखेंगे नहीं कि जिसने अपमान किया हुआ था उन्हीं के समर्थन में आकर के ये फिर ये इस तरीके का वक्तव्य दे रही है। ये उनको वोट देने वाले नहीं है। हम तो अपेक्षा करते हैं भाई, महिला रही हैं, अपने दम पे निकल करके आई हुई है, उनसे अपेक्षा थी कि वो निकलती, चाहे जब भी रैली कर रही थी बिल्कुल फुल फेज में आती और ढंग से जो है सरकार से प्रश्न पूछने का जो कार्य होता है, अगर आप सरकार में नहीं है तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप सरकार को आईना दिखाइए, ना कि उनकी चट्टुकारिता करिए, ना कि उनके कसीदे पढ़िए। वो कार्य उन्होंने नहीं किया। उनके आधे वोटर आप ले गए, बाकी बीजेपी ले गई, तो उनको उनके पास बचा क्या है अभी? और जो अभी रैली में दिख रहे हैं विधायक बहुत लोयल है, अपने दम पे बना हुआ है, लेकिन वो विधायक उनके पास में है, पार्टी नहीं छोड़ी है वो। और ये जो सारे रैली में दिख रहे हैं वो आधे बीजेपी के वोटर हैं, आधे समाजवादी पार्टी के वोटर हैं। आ गए बहन जी को सुनने आ गए। पांडे जी, महत्वपूर्ण मायावती का स्टेटमेंट किस प्रकार से देखते हो आप? पांडे जी, थैंक यू वेरी मच मैम। डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर मिश्रा जाने से पहले बोलिए, सुन रही है वो। पूजा जी ने राजू पाल के हत्यारे का नाम नहीं बताया। अतीक अहमद नाम है, कुख्यात माफिया अतीक अहमद, प्रयागराज का था। आप पिछली बार कब गए थे शैलेश पांडे जी? पिछली बार उत्तर प्रदेश कब गए थे? नहीं, मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, भाई जेन्युइन सवाल है, मैं कोई जंगी नहीं कस रहा हूं, क्योंकि क्या है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैंने जैसे आपको बोला कि हमारे लोग बहुत हैं नोएडा में, मैं खुद सहारा में था, मैं और प्रदीप जी दोनों सहारा में थे। सहारा की जो 2 चैनल है, एनसीआर और मुंबई, उसके हम लोग इंचार्ज थे। मैं इंचार्ज था सारा मुंबई और सारा एनसीआर का। वहीं से आरकेबी शो बड़ा आगे बढ़ा, हर जगह पे गया। तो लखनऊ में, बाकी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पत्रकार हैं, और लोगों ने जेन्युइनली कहा है, मैं ये जेन्युइन बात पूछ रहा हूँ, लोगों ने जेन्युइनली कहा है कि यार यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हुई है, वेरी फ्रैंकली। क्योंकि मुझे अभी तक याद है, जैसे ये अभी महीना शुरू हो गया ना अक्टूबर का, तो ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद हमारी चिंता ये रहती थी कि यार 5 साढ़े 5 बज गए, लड़कियों को घर भेजना है। आपको मालूम है शैलेश जी, लड़कियों को घर भेजना है तो उनके लिए अलग से ट्रांसपोर्ट अरेंज करो, देखो सब लोग जाओ, और जो नाइट ड्यूटी पर हैं वो नाइट ड्यूटी पर तो हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन जिनको घर भेजना है उनको जल्दी घर भेजिए। तो वो स्थिति बदली है क्या उत्तर प्रदेश में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब आप भी जाते होंगे ना यूपी? नहीं, देखिए, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपराध का, जराइम का खात्मा हो रहा है, और स्थिति तो ऐसी है कि जो हिस्ट्री शीटर भी अपराधी थे वो या तो खुद जाकर सरेंडर कर दिए हैं कि भाई मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे दो, मुझे अरेस्ट कर लो, जेल में डालो ताकि मैं जेल में सुरक्षित रहूं या मेरी जान बच जाए,
वरना जिस प्रकार से हिस्ट्री शीटरों का इनकाउंटर शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, आज अपराधी दहशत में हैं और अपराध कम हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषणों से खुलेआम मन से बोला था कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं या जेल में जाएं, या नहीं तो उनको ऊपर जाना पड़ेगा। और वही दहशत है, वही डर है अपराधियों का, और अपराधियों पर डर होना चाहिए शासन का, प्रशासन का और मुख्यमंत्री का। और मुख्यमंत्री की दहशत अपराधियों पर है, जिसके के कारण अपराध कम हुआ है। लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो मानना पड़ेगा, एक चीज तो मानना पड़ेगा दूसरी जी, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। लेकिन सर एक चीज, अरे छोड़ो ना सर, एक चीज तो कोई अच्छी बात करे ना, पार्टी का प्रवक्ता होता है सर, अच्छी बात करे। अगर किसी मुस्लिम माफिया का नाम लेने को बोलो तो वो नाम ही नहीं लेता। मतलब उनको इतना डर ये रहता है कि किसी मुस्लिम माफिया, मुस्लिम अपराधी का नाम ले लेंगे तो वो मुसलमानों का वोट कहीं खराब। सर एक और चीज तो मैं आपसे पूछना भूल गया, मेरी गलती इतनी। सर मैं अपनी गलती का इजहार करूं। सर मुझसे आज एक गलती हुई है, अरे शैलेश पांडे जी मुझसे आज एक गलती हुई है, शैलेश पांडे जी मुझसे आज एक गलती हुई है, मैं अपनी गलती का इजहार कर लूं पहले। आई मस्ट कन्फेस दिस इज माय फॉल्ट। क्या है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर आए तो मुझे पूछना चाहिए था, आमिर खान मुतक्की साहब यहाँ पर आए, आमिर खान मुतक्की साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी अफगानिस्तान एम्बेसी में, फिर उसके बाद उन्होंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जो अफगानिस्तान एम्बेसी में थी, वहाँ पे महिलाएं अलाउड नहीं थी, बिकॉज नेचुरली आज जैसा कि आप जानते हैं जो एम्बेसी होती है वो उस देश का इलाका होता है, वहाँ पे उस देश के कानून चलते हैं, हमारी भारत सरकार वहाँ पे कुछ नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पाकिस्तानी एम्बेसी भी है, दैट इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान, इट इज कंसिडर्ड इवन दो इट इज इन न्यू दिल्ली। जैसे हमारी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में, दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया, वहाँ पे पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। और बाहर जो उसके बाद जो उन्होंने दोबारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें महिलाएं अलाउड थी क्योंकि वो बाहर था, दैट वाज इन इंडियन टेरिटरी। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज क्या हुई है कि कांग्रेस ने और बाकी सब लोगों ने जितना कंडेम किया ना उसको, भाई महिलाएं नहीं थी, महिलाएं नहीं थी, महिलाएं नहीं थी, और उसके बाद फिर वो देवबंद गए, दारुल उलूम देवबंद गए। सर उसके बाद क्या हुआ है कि बहुत ही मुस्लिम वोट जो है वो बहुत नाराज है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से कि आप लोगों ने अफगानिस्तान से जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, जो भारत की बात कर रहे हैं, जिसने यहां पर बैठ करके बोला है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, ये फॉरेन मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी है। मुसलमान जो है, काफी मुस्लिम वोट जो है वो बहुत या तो आपकी तरफ जाएगा या कहीं और जाएगा, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ नहीं जाएगा। ये मुझे पूछना चाहिए था जब पूजा मिश्रा जी यहाँ पर थे, तो कल पूछ लेंगे, कोई ना कोई समाजवादी पार्टी वाला आएगा ही। इस विषय के बारे में आप क्या कहेंगे सर, बोलिए। जी देखिए, हमारी विचारधारा राष्ट्र प्रथम की है, हम भारत माता को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2047 तक भारत को संपूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुके हैं, उस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। इस वक्त हम ये जानते हैं पाकिस्तान के प्रति जो हमारी नीति है, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और इसके कारण दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये नीति, ये विदेश नीति, कूटनीति, रणनीति, चाणक्य नीति पे देश को काम करना पड़ेगा। आज जितना नुकसान पाकिस्तान हिंदुस्तान को पहुंचाना चाहता है, और अगर उसका दुश्मन हिंदुस्तान की धरती पर आकर एक सच्चाई, एक इस्लामिक देश सच्चाई बात कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा सच्चाई की बात किसी इस्लामिक कंट्री ने रखी है, और इसका साथ देश के 150 करोड़ नागरिकों को देना चाहिए। लेकिन जहां हम देश की बात कर रहे हैं, देश के हित की बात हो रही है, दुश्मन के खिलाफ की बात हो रही है, और उस वक्त ऐसे देश के खिलाफ या ऐसी घटना के खिलाफ आप खड़े होते हो, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, यानी आप देश के खिलाफ खड़े हो गए, आप दुश्मन देश के साथ खड़े हो गए। और ये राष्ट्र विरोधी नीति, मैं बार बार आपके चैनल पे राजीव जी कहा हूं कि ये नीतियां जब से सोनिया गांधी जी कांग्रेस की कमान संभाली और ये राहुल गांधी जी, तब से ये कांग्रेस की विचारधारा में
बहुत भयंकर परिवर्तन आया है, बहुत भयंकर परिवर्तन आया है। ये आज देखिए, अभी आपने मायावती की बात की, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, वो तारीफ भी समाजवादी को और कांग्रेस को पच नहीं रही है। अरे भाई, भले अलग अलग राजनीतिक दल हैं, लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा कोई काम कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर काम की अगर कोई तारीफ करता है तो इसमें क्या बुराई है? अरे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कई मुद्दों पर उस वक्त की प्रधानमंत्री की सराहना की थी जी। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ऑपरेशन सिंदूर की जब बात को पूरी दुनिया के सामने ले जाना था, तो अपोजिशन के सभी पार्टियों के सांसदों को उस डेलीगेशन में भेजा देश की बात को रखने के लिए, और उन्होंने उनके इस कार्य से राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, देश सर्वोपरि, ये दिशा देश को दिया, ये दिखा दिया कि ये राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी पॉलिटिक्स से बढ़कर देश है, और देश के लिए हम सभी को एकजुट होकर, एक मन होकर, एक दिल होकर हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, देश को, भारत माता को। पांडे जी, दूसरा अटैक हो रहा है आरएसएस पे जिस पर से अटैक हो रहा है कर्नाटक में, खड़गे साहब के लड़के प्रियंक खड़गे और अलग अलग लोग कह रहे थे बैन करो। देवेंद्र फडणवीस जी ने वार्निंग दिया है, गए बार आपने आरएसएस को बैन कर दिया, इंदिरा गांधी जी की सरकार चली गई, तो किस प्रकार से देखते हो, यह क्या ठीक है देश हित में? बिल्कुल नहीं ठीक है। प्रियंक खड़गे को मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले वो अपने पिताजी, जो इस वक्त देश में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बातों को सुन लें, उनके वीडियो को देखें, बैठ से गौर करके देखें कि खड़गे जी जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में जाकर उनके कार्यक्रमों की सराहना की, बढ़ाई की, बधाई दी, और उनका बेटा आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस की आलोचना कर रहा है और उसकी तुलना तालिबान से कर रहा है। यह बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निषेधात्मक है। मैं इसका कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध और यह आलोचना करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है, क्योंकि इस देश की जनता अब आरएसएस की नीतियों के साथ है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशभक्त ये संगठन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण करने वाली एक संगठन है। ये सेवा का व्रत लेकर काम करने वाली संगठन है, और ये स्वामी विवेकानंद, छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श बनाकर राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और सेवा भाव के लिए काम करने वाले, अपने सर्वस्व जीवन को समर्पित करने वाले स्वयंसेवकों की संस्था है। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपात काल में जो काम किया, आज कोई भी नैसर्गिक आपदा आती है तो सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक आगे रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को गणतंत्र दिवस के परेड में सहभाग दिया। महात्मा गांधी जी संघ के कार्यक्रम में जाकर वहां पर उन्होंने उनकी आरएसएस की तारीफ की। तो क्या प्रियंक खड़गे महात्मा गांधी जी के विचार को नकारते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के विचार को नकारते हैं? ये कैसी कांग्रेस हो गई है? ये प्रियंक खड़गे आज किस कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि जो अपने ही पूर्वजों महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बताए हुए बातों को भी नहीं मान रहे हैं? आज कांग्रेस को ये लोग खाई में झोंकने का काम कर रहे हैं, और कांग्रेस इस तरह से अपने जो उनकी वैचारिक पतन हो गया है, इस प्रकार से उनका जो ये वैचारिक पतन के कारण धीरे धीरे इस प्रकार के जो नेता कांग्रेस में जुड़ रहे हैं उनका पतन निश्चित है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज अपना 100 वर्ष पूर्ण की, जिस पर हमें अभिमान है, स्वाभिमान है, गर्व है। आज सेवा के 100 साल पूर्ण हुए, आज राष्ट्र रक्षा के 100 साल पूर्ण हुए, आज देशभक्ति के 100 साल पूर्ण हुए, आज भारत माता को विश्व गुरु बनाने के संकल्प को 100 साल पूरे हुए। आज सेवा के माध्यम से, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आरोग्य हो, चाहे वो रक्षा हो, शैलेश पांडे जी, विद्यार्थियों के लिए, लेकिन ये हम लोग क्या सुन रहे हैं सर?
मजदूरों के लिए हर शैलेश क्षेत्र में पांडे वो जी, काम कर महाराष्ट्र रही की बात कर है। एक रहे हैं। वट वृक्ष बनकर दुनिया की सबसे बड़ी सामाजिक संगठना इस धरती पे कोई जी। है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा कुछ भी कहना अनाप शनाप ये सूरज पर थूकने जैसा है, ये राइट। तो शैलेश पांडे जी, दीपक दिखाने जैसा है। देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी की बात कर रहे हैं सर। और इनके बोलने से हमें या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। चलते चलते हमारा ये सेवा का व्रत, हमारा ये देशभक्ति का कार्य ऐसे ही अनवरत चलता है। वंडरफुल सर, वंडरफुल वंडरफुल। आई होप यू सक्सीड एंड आई होप यू कंटिन्यू। लेकिन ये बता दीजिए कि देवेंद्र फडणवीस जी ने कोई 8 स्कीम्स थी बहुत बड़ी बड़ी, आदरणीय सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी की जब वो मुख्यमंत्री थे, उसमें से 7 तकरीबन बंद कर दी हैं और जो 8वीं है वो मतलब ना ही के बराबर चल रही। क्या हो रहा है सर? इनफैक्ट जो एकनाथ शिंदे साहब के जो सहयोगी हैं वो बोलते हैं कि अजीत दादा पवार वगैरह जो हैं उनके जो मंत्री हैं उनके सारे काम हो रहे हैं, हम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। सर ये क्या है कि कोई टेंशन चल रही है देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी के बीच में? सर नहीं राजू जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब सरकार काम करती है और 3 पार्टी की सरकार रहती है तो बहुत सारे विषयों पे चर्चाएं होती है और चर्चा करके सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और इस वक्त महाराष्ट्र के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय देवा भाऊ जी के नेतृत्व में और एकनाथ शिंदे जी शिवसेना के जो मुख्य नेता है, अजित पवार जी एनसीपी के जो मुख्य नेता हैं, ये तीनों में बहुत ही अच्छा तालमेल के साथ महायुति की सरकार चल रही है और महायुति अच्छा काम कर रही है। और ठीक है, कोई विषय कोई पे अगर कुछ हुआ है तो नहीं, 7 स्कीम बंद कर दी है सर। और कोई भी डिसीजन लेने के बाद हो सकता है उसका इम्पैक्ट और उसका आधार, उसका अस्तित्व, उसका फ्यूचर प्लान, इस विषयों में कोई भी चर्चा करके कोई 1 रुपए की जो इंश्योरेंस थी वो भी बंद हो गई। अभी भी तीनों नेताओं में बहुत अच्छा सामंजस्य है, महायुति बहुत अच्छे से काम कर रही है। महाराष्ट्र की जनता महायुति की सरकार को माथे पर बिठा के रखी है और महायुति की सरकार अच्छी तरह से काम करती रहेगी। बट क्या लाडकी बहन बहुत सरकार के तिजोरी को स्क्वीज कर रहे हैं पांडे जी? 410 करोड़ फिर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से निकालना पड़ा, तो क्या लाडकी बहन इस सरकार के जो तिजोरी है, ट्रेजरी है, उसको टोटल डिस्ट्रॉय कर देगा? क्या आगे जाके ये भी स्कीम पे खतरा है पांडे जी? नहीं, बिल्कुल किसी भी, देखिए महाराष्ट्र सरकार की किसी भी स्कीम में कोई भी खतरा नहीं है। देखिए जब मुख्यमंत्री या हमारी सरकार, महायुति की सरकार कोई भी योजना लाती है तो योजना लाने के पहले उस पर चर्चा होता है, विचार होता है, विमर्श होता है, उसकी पूरे प्लानिंग की जाती है, फोरकास्टिंग होती है, विजनरी उस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद ही सारी चीजें निर्णय ली जाती है। और इस पे भी वही हुआ है और आने वाले समय में भी जो भी फंड का आयोजन है, नियोजन है, उसको और अच्छी तरह से परिपक्व करके किया जाएगा। और ये जो लाडली बहन योजना है, आज ये महाराष्ट्र में एक प्रकार से महायुति सरकार के लिए बूस्टर का काम किया। आज महायुति सरकार को महाराष्ट्र की माताओं बहनों ने, लाडकी बहन ने अपने सर पर उठाया और हम उनका सम्मान करते हैं। और ये योजना, लेकिन वो सब लोग यही कह रहे हैं डिपार्टमेंट को पैसे नहीं मिल रहे सर, बाकी डिपार्टमेंट्स नहीं आई सर, बाकी डिपार्टमेंट्स को पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये जेन्युइन बात है। वेरी फ्रैंकली आप लोगों को इसको संज्ञान में लेना पड़ेगा। बाकी विभाग के जो लोग हैं वो सारा पैसा लिया जाएगा और किसी भी डिपार्टमेंट को जरा भी हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। हमको किसी न किसी अन्य सोर्स के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से हम सारे जिन डिपार्टमेंट को फंडिंग की आवश्यकता कांग्रेचुलेशंस ऑन गढ़चिरौली और सभी समाज को, सभी डिपार्टमेंट को हम योग्य जिसको जितना जहां सर जो 60 नक्सलवादियों ने आज आत्मसमर्पण किया है उसके लिए एक बार फिर साधुवाद। बहुत जबरदस्त काम किया सर, फैंटास्टिक वर्क। आई होप जो उन्होंने कहा कि गढ़चिरौली जो है वो पहले लास्ट डिस्ट्रिक्ट होता था, 34th डिस्ट्रिक्ट, अब उन्होंने कहा है कि वो नंबर 1 डिस्ट्रिक्ट है भाई। हमारी गिनती गढ़चिरौली से शुरू होगी, ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम जो है ये तो महाराष्ट्र के बनने के पहले से प्रॉब्लम है, वो अगर समाप्त हो जाती है तो बहुत बड़ी बात, मतलब इट विल बी फैंटास्टिक थिंग, बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको पूरे आत्मविश्वास से ये कहना चाहूंगा और पूरे महाराष्ट्र की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि देवा भाऊ के नेतृत्व में गढ़चिरौली से और संपूर्ण महाराष्ट्र से 2026 तक ये जो नक्सलवाद है ये खत्म हो जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने
खुले आम मन से ऐलान किया है कि 2026 तक हम अपने देश को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि यही चीज, यही फोकस, यही उसे भी भूलना नहीं चाहिए। उन पार्टियों को भी नक्सलवादियों की तरह जमीन में गाड़ने का काम देश की जनता को करना चाहिए। ये मैं देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता से निवेदन करूंगा कि जिन्होंने नक्सलवाद फैलाया, जिन्होंने ये आग लगाई, जिन्होंने हमारे गरीब, आदिवासी, वनवासी और पिछड़े समाज के हमारे युवाओं के हाथ में ये बंदूकें दी, ये हथियारें दी, ये उनके जीवन को उद्ध्वस्त किया, आज उनको भी खत्म करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय देवा भाऊ का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र से नक्सलवाद सर, उसमें कोई डाउट नहीं। आज गढ़चिरौली में नए नए उद्योग लग रहे हैं, लेकिन एक छोटी चीज है सर, वो तो मालूम है सर, रोजगार दिए जा रहे हैं सर। बोल प्रदीप जी बहुत बात दे चुके हैं, जुड़ रहे हैं, वहां भी सुजलाम सुफलाम हो रहा है। गढ़चिरौली भी एक दिन हमारा वो मुंबई जैसा शहर बनेगा, ऐसी हम परमपिता परमेश्वर आई होप इट हैपेंस। बट सर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, चलते चलते जो आपने जोश दिखाया ना, जो जोश आपने दिखाया अंदर से, जो जोशीलापन आपने दिखाया गढ़चिरौली को लेकर के, नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, सर वो ड्रग्स के ऊपर भी तो दिखाए ना सर। बिल्कुल दिखाएंगे सर, वो ड्रग्स के ऊपर भी तो दिखाए ना। अमित शाह जी कहते हैं कि इंडिया को, सर अमित शाह जी कहते हैं इंडिया को ड्रग्स फ्री करना है, ये करना है, वो करना है, और हमारे जो ड्रग्स की लड़ाई में सबसे आगे अग्रसर जो अफसर थे उनको अभी तक आप वापस डिपार्टमेंट में नहीं लाए हैं। समीर वानखेड़े जी आज भी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में फिर रहे हैं। सर, आप ही के लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने उनका सत्कार किया कितनी बार। और तो और छोड़िए, अमित शाह जी ने उनको अवार्ड दिया है। अब मेरा ये कहना है कि किसी फिल्म स्टार की मतलब इन्फ्लुएंस इतनी बड़ी होती है कि एक इतने बड़े होनहार ऑफिसर को आप बाहर रखें उसको। सर, मेरी विनती आपसे ये होगी, समीर वानखेड़े साहब के साथ अन्याय हुआ है, उनको वापस लाइए सर, वेरी फ्रैंकली, बिकॉज हर कोर्ट ने उनके फेवर में अभी तक जजमेंट दी है, हर एक कोर्ट ने। किसी ने नहीं कहा कि वो गलत हैं, इनके खिलाफ सीबीआई की इंक्वायरी हुई, बाकी सब चीजों की भी इंक्वायरी हुई। क्या प्रदीप जी, ईडी की भी इंक्वायरी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीबीआई इंक्वायरी, ये इंक्वायरी, वो इंक्वायरी, सब में उनको क्लीन चिट मिली है। तो सर ये बड़ा अजीब लगता है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। और अभी जो वो उनका जो सीरियल आया है बैड्स ऑफ बॉलीवुड, उसके अंदर तो समीर वानखेड़े का तो आप चलिए मजाक उड़ाइए, कोई बात नहीं, लेकिन वो आप मजाक किसका उड़ा रहे हैं? भारत माता की जय, वंदे मातरम का मजाक उड़ा रहे हैं, आप जय हिंद का मजाक उड़ा रहे हैं। मतलब ये क्या है सर? मतलब वेरी फ्रैंकली, आई बीन अ फैन ऑफ शाहरुख खान साहब का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ये सर दिस इज नॉट डन, दिस इज माय ओपिनियन। अमित शाह जी, मोदी साहब और जो फडणवीस साहब ने जो संकल्प लिए हैं पूरे ड्रग फ्री देश इंडिया, ड्रग फ्री महाराष्ट्र, ड्रग फ्री मुंबई, पांडे जी हासिल करना पड़ेगा। ऐसे ऑफिसर्स को आप बिल्कुल नहीं कर सकते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी ने यह संकल्प लिया है कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है, ड्रग्स मुक्त भारत बनाना है, ड्रग्स मुक्त महाराष्ट्र बनाना है, और उस कड़ी में हम कठोर से कठोर कदम उठा रहे हैं। तो इनको वापस लाइए ना सर, इनको या तो यहाँ लाइए या पंजाब भेजिए। जी की बात है, उन्हें क्लीन चिट मिली है, तो जल्द ही सरकार भी उन्हें सही स्थान देगी और हम ड्रग्स मुक्त भारत और नशा मुक्त भारत के लिए। सर, कहीं महाराष्ट्र का हाल पंजाब वाला ना हो जाए सर, डर तो ये है कहीं महाराष्ट्र का हाल पंजाब वाला ना हो जाए। पंजाब में नहीं, बिल्कुल नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र देखिए, ये पुरोगामी महाराष्ट्र है, ये वारकरियों का महाराष्ट्र है, संतों का महाराष्ट्र है, शौरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राजमाता आज यहाँ अहिल्यादेवी होलकर जी का महाराष्ट्र है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नागपुर का महाराष्ट्र है, जो संस्कार देते हैं, चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण की बातें जहां से उठी, जिस नागपुर से, वो महाराष्ट्र है। यहाँ पर चरित्र के लिए हम काम कर रहे हैं, व्यक्ति निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। तो व्यक्ति निर्माण और चरित्र निर्माण में जो भी बाधाएं आती हैं, हर बाधाओं से हम लड़ाई लड़कर आगे बढ़ेंगे। मैं तो यही कहूंगा, जाते जाते बाधाएं आती हैं, आए, चाहे जितनी विपत्तियां, हर विपत्तियों पर आपत्ति उठाकर अपने पौरुष को जगाकर हमें तो आगे बढ़ते जाना है, और हम आगे बढ़ेंगे। हम नशा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे, हम युवाओं को सक्षम बनाएंगे। स्वामी विवेकानंद का जैसा उन्हें 100 युवा चाहिए था, हम हजारों लाखों स्वामी विवेकानंद को चाहने वाले चरित्रवान
व्यक्तिवान और देशभक्त युवा। स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर, नरेंद्रनाथ दत्ता जी के ऊपर कभी और बात करेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। एनीवे, गॉड ब्लेस यू सर। नमस्कार। मेरे तो गुरुदेव है, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो स्वामी विवेकानंद जी के कारण हूँ। राजीव जी, मैं तो हमेशा फुटबॉल खेलते हैं कि मेरे नहीं? फुटबॉल खेलते हो कि नहीं खेलते? फुटबॉल खेलते हैं कि नहीं? जी, बचपन में खेलता था मैं क्रिकेट। आजकल क्यों नहीं खेलते सर? विवेकानंद जी ने तो कहा था कि आप भगवत गीता को ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप फुटबॉल खेलें। थोड़ा अपने बाजुओं में दम लाइए। सिर्फ और सिर्फ राम राम कहने से अच्छा होगा, लेकिन साथ में अपने बाजुओं में दम भी लाइए। सबसे बड़ी बात ये उन्होंने उस उम्र के लोगों को कहा था जिस उम्र में खेल की आवश्यकता होती है। सर, खेल की आवश्यकता हर उम्र में होती है। प्रदीप जी को देखिए सर, प्रदीप जी आज की तारीख में 35 साल के लगते हैं सर। देखो कितने, हर रोज ही इज बिकमिंग यंगर एंड यंगर। सर, चार घंटे जिम जाते हैं सर। पांडे जी और हमारे रूट्स सब एक ही है। जी जी, सब एक ही जगह से हैं सर। मैं अकेला ही था उधर ईस्टर्न यूपी में, पूरी की पूरी नानाजी देशमुख के साथ सर, गोंडा बेल्ट में। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत काम किया है। और बाय द वे, मैं ये बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, 2 महीने के लिए हमारे साथ नरेंद्र मोदी जी भी थे। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं राजीव जी, बहुत सौभाग्यशाली। ये बात है 1980 की बात है। आई थिंक 1980 महापुरुष 1980 और 81 की बात है। नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर आए थे, उन्होंने भी बहुत काम किया हम लोगों के साथ। और वहाँ पे मैं आपको बता दूं, वो पूरा इलाका जो है, लोग कहते हैं ना हिंदुस्तान में कभी कोई, सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ आपका, आई होप यू लिसन टू मी, कि देश में प्रगति नहीं हुई, विकास नहीं हुई। अरे भैया, बलिया में जाके देख लो, बाकी हर जगह पे जाके देख लो सर। जब हम लोग वहाँ पर थे, मैं तो स्कूल से वे भी निकला था, बच्चा था मैं तो, और नाना जी का बड़प्पन है, उन्होंने कहा भाई चल काम पे लग जा बेटा। तो हम लोग काम पे लगे। आपको मालूम है सर, बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, किस तरीके से हम लोग वहाँ पे चाय बनाते थे, किस तरीके से हम लोग बाजरे की रोटी पे मतलब हम लोग जिया करते थे, कैसे बच्चों के बीच में हम लोगों ने काम किया है। हर एक को आयोडीन डेफिशिएंसी को लेकर के कैसे उसको पूरा रिमूव किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो नानाजी देशमुख की जो छवि रही है, जो उनको मतलब एक तरीके से ऐश्वर्य मिलना चाहिए था, वो शायद नहीं मिला। भारत रत्न मिला उनको, ठीक है, लेकिन जो उनकी कहानी है वो हर एक के सामने अगर बहुत अच्छी तरीके से की जाए तो, आई थिंक इट वाज 1980 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई थिंक नरेंद्र मोदी जी वाज देयर फॉर अबाउट 20 days or 23 days. I think he was there. Very young man. I remember him, and I can't say I interacted with him, which I did, but he was there with us. I remember that. In any event, thank you very much, sir. बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, प्रदीप जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप में जबरदस्त वो ऊर्जा दिखता है हमको, एकदम जबरदस्त ऊर्जा, वल्केनो जैसे। वंडरफुल सर, थैंक यू वेरी मच। और होपफुली बीएमसी के चुनाव होंगे जनवरी में 2026 में, और होपफुली बीजेपी अच्छा करेगी, उम्मीद करते हैं। राइट, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। So Pradeep ji, the Hamas have gone on a killing spree in Gaza, and this is the only organization, by the way, which does not wear a uniform during wartime and wears a uniform during peacetime. And it is a designated terrorist organization, so I really would love to know, is Mr. Trump planning to bring Hamas back into the administration of Gaza, or what's he planning to do? And how is Mr. Shahbaz Sharif, the Prime Minister of Pakistan, going to explain himself when the ceasefire is going to just collapse? क्योंकि ये ceasefire तो collapse होगी सर, जब सामने जो 2 मेन पार्टीज हैं वो सामने नहीं है, और आपने अपने चेले चांटे जितने भी हैं वो इकट्ठे किए हुए हैं, आपने चमचे जो बस आपके सामने पूंछ हिलाएं और आपकी तारीफ करें। मतलब ये क्या है? मतलब मेरी समझ के बाहर है ये। व्हाट इज दिस? शाहबाज शरीफ तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। अभी से किलिंग जो शुरू कर दिया, करीब 250 लोगों को जो डेमोन्स्ट्रेशन थे उनको गोली से उड़ा दिए। टीएलपी के जो टोटल, और अलग अलग वहां पर विद्रोह चल रहा है कि आप गए कैसे, ट्रम्प से इतना आपको करीबी जाने की जरूरत क्या है। एंड दैट चीज है जहाँ इस देश का प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया, भारत देश का, आप क्यों गए थे? तो ये सब प्रश्न का उत्तर उनको देना पड़ेगा, आसिफ मुनीर को देना पड़ेगा। कब तक आप बंदूक के नोक पर सबको रोकते रहेंगे? नहीं होगा। लेकिन प्रदीप जी, एक बहुत बड़ी चीज यहाँ पर आती है, और अब मैं एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने
सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। The Can fastest, we have that please? the fastest growing channel of the nation. Nation now subscribe to that icon as Bajaj Saab was saying. उस आइकन पर आप क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्रदीप जी एक बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, क्या है कि पाकिस्तान का जो पूरा रीजन फॉर एग्जिस्टेंस है वो है हेट्रेड फॉर इजराइल एंड हेट्रेड फॉर इंडिया। ठीक है सर, हेट्रेड फॉर इंडिया, हेट्रेड फॉर इजराइल। पहले हेट्रेड फॉर इंडिया आया, उसके बाद हेट्रेड फॉर इजराइल आया। आज की तारीख में by standing next to Mr. Trump, effectively the Pakistani Prime Minister is standing next to Israel. मतलब इजराइल के काम कर रहे हो ना तुम अभी वहाँ पे। ट्रम्प साहब ने जो अपनी सीज फायर बताई है उसमें तो सारा का सारा जो एवरीथिंग इज वेटेड इन फेवर ऑफ इजराइल। पैलेस्टीनियंस के लिए कहा गया था कि उनके लिए एक स्टेट बनेगा, वो नहीं है जो 20 पॉइंट प्रोग्रामिंग का था। पैलेस्टीनियंस विल बी इन चार्ज ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, वो भी नहीं है। ऑल द पीपल द सो कॉल्ड जेनोसाइड, अभी 2 साल से हम लोग यही कह रहे हैं ना, इजराइल ने वहाँ पे न जाने कितने फिलिस्तीनियों को मारा, कितने लोगों को मारा, कितने बच्चे वहाँ पे मर गए। इनफैक्ट हमारे नासिर साहब जो हैं यहाँ पर आकर के इतने भावुक हो गए थे, ऑलमोस्ट आंसू निकल आए थे उनके, जब आपने प्रदीप जी आपने जब उनसे गाजा के बारे में पूछा था, तो क्या वो 2 साल जो इजराइल ने नरसंहार किया वहाँ पे, तो आप भूल जाएंगे क्या? मतलब मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। नाउ यू विल बी स्टैंडिंग नेक्स्ट टू इजराइल। इफेक्टिवली Shehbaz Sharif Saab, by saying all what he has said with regard to Mr. Trump, has actually endorsed Israel. So now Pakistan is an ally of Israel. कहने का मतलब ये हुआ। Exactly. ये मतलब इसमें और क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ। और जहाँ तक इजराइल का प्रश्न है, Israel is never going to forgive Hamas for what they did on October 7 and they should not. 1400 इजरायलियों की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई, जिस प्रकार महिलाओं की छातियां काटी गईं और उसके बाद उसको फुटबॉल की तरह इस्तेमाल किया गया, वहां पर बलात्कार हुए, प्रदीप जी मृत शरीरों के साथ बलात्कार किए गए। एंड हाउ डू वी नो दिस? सबसे बड़ी बात ये नहीं, इट इज नॉट एज इफ सब इन्वेस्टिगेशन इज टेकन प्लेस। सर, Hamas has made videos and put them out on the dark web. Yes. We know this from Hamas itself, that they have done this and they are very proud of it. So what has Mr. Trump done? I still can't figure this out. What has he done? आप पीछे देखें, वो जॉर्जिया मेलोनी जो खड़ी हैं, उनका हाथ अपने मुंह पे चला गया है इसकी बात सुनते हुए। ये जो भाई साहब जो हैं, मतलब प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, और वो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? असली प्रधानमंत्री तो इनका जेल में है प्रदीप जी, तो इनको बना दिया प्रधानमंत्री। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आपके कोई 100 के करीब अब सुनने में आया है फौजी जो थे वो भाग गए वहाँ से, बॉर्डर से अफगानिस्तान की लड़ाई में 58-60 के करीब आपके लोग मर गए। आप कह रहे हैं हमने 200 अफगानिस्तानी मार दिए, हमने कितने मार दिए वगैरह, वो आप हमेशा कहते रहते हैं। बट एज आवर DGMO जस्ट नाउ रिवील्ड, DGMO एयर फोर्स और वाज इट DGMO आर्मी, आई एम नॉट श्योर, 14 अगस्त की जो लिस्ट निकली थी ना पाकिस्तान में गैलेंट्री अवार्ड्स की, सर, उसमें पाकिस्तान का जो सेना मेडल का जो इक्विवेलेंट है ना, हमारे यहाँ पे सेना मेडल मिलता है प्रदीप जी, किसी ने भी एक्शन देखा हो उसको सेना मेडल मिलता है लड़ाई में। पाकिस्तान ने 100 हमारे इक्विवेलेंट सेना मेडल जो हैं, पाकिस्तान का जो इक्विवेलेंट है, जो भी नाम है उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो दिए हैं, मरणोपरांत दिए हैं, पॉस्ट्यूमस दिए, which means Pakistan lost over 100 soldiers during Operation Sindhu. And how do we know this? We know this from the Pakistanis themselves. They themselves said it. Just like, if you remember, Mr. The same gentleman who's on screen right now had gone to Azerbaijan. If you remember, he was in Baku. Yes. Where he said, okay, we had just finished our morning prayers and we were about to retaliate when we were hit by. He was suing actually. He was. we were hit by BrahMos missiles. BrahMos. तो हमें मालूम नहीं था कि 4:15 बजे सुबह we had attacked them with the BrahMos missile in Islamabad, मतलब रावलपिंडी के पास नहीं, जो नूर खान बेस है। इनकी नूर खान की बेस हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करी, ये हमें कैसे मालूम पड़ा? इन्होंने खुद बताया। So all I'm saying is, when will Pakistan wake up to the fact that they are a country? Otherwise what will happen is, प्रदीप जी, आखिर में सिर्फ पंजाब रह जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएगा अफगानिस्तान के पास, बलूचिस्तान विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री, और
सिंधु देश का क्या होगा वो उसके बारे में देखते हैं, बट आई डोंट थिंक पाकिस्तान विल रिमेन द वे इट इज. आई डोंट थिंक सो. And already, by the way, the Chinese are now freaking out at the rare earth metals which the Pakistanis are now, which the Pakistanis have now promised to the Americans, and they are delivered to them. They've already sold it to them, and the Chinese have said, "Hey, this belongs to us. How dare you?" I wonder how the Pakistanis are going to repay the Chinese, because the debt that Pakistan owes to China is so humongous that it will take them over 1,000 years to repay it. They won't be able to. So, it will be very interesting to see how they walk the tightrope between China and the United States of America. It will be very, very interesting to see. Anyway, that's just about it as far as tonight's show is concerned. Thank you very much for your company. आप लोगों ने हम लोगों का साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का. And from both Pradeep ji and myself, आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी. और अगर आप लोगों ने वंदे मातरम, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, एक बार फिर सब्सक्राइब टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन, फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन, नेशन नाउ. और अपने कमेंट्स जरूर भेजें. प्लीज डू सेंड योर कमेंट्स. वी लव टू रीड व्हाटएवर यू हैव टू से, इंक्लूडिंग ऑल द लवली कलरफुल लैंग्वेज दैट यू यूज समटाइम्स, स्पेशली अगेंस्ट मी. आई एब्सोल्युटली लव इट. और दैट्स इट. वी विल सी यू टुमारो. तब तक के लिए नमस्कार. भारत माता की जय. जय हिंद. जय हिंद.